Okay. So, in today's numerical aptitude session, we are going to learn averages. Okay. आज जो नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटर है ना कि अगर मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कराऊंगा तो मजा नहीं आएगा. राइट, सो आई विल गिव यू दोस क्वेश्चंस फ्रॉम होमवर्क वंस अगेन, एंड जो करेंगे फिर उनके लिए हम देखेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक. हम 3.1 कर रहे थे. राइट, हमें न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन. In numerical computation, we have finished 2 topics. Right? Those topics are HCF and LCM. That was your 3.1, HCF and LCM. Second topic, that is 3.2. That was on ratio, proportion, and variation. Okay. Then 3.3, that was on partnership. Okay. Now let us start 3.4. That is on averages. Okay. So we all know about averages, isn't it? So we all know about averages. Tell me. So average is sum of quantities divided by number of quantities, isn't it? If you want to write normal definition or normal formula of average, so we all know that average is nothing but sum of numbers divided by total number of numbers, or sum of quantities. If I write it in proper words, so it is sum of quantities. You can take any quantities, sum of quantities divided by number of quantities. So number of quantities n, sum of quantities s, and if I express average as a, then definitely a will be equal to s by n, or you can express s is equal to average into number of quantities. Sure. From that, if I want to tell you that, just quickly tell me average of first n natural numbers, or 1 to n consecutive natural numbers. What will be it? Right, 1 to n consecutive natural numbers. Type in chat box quickly, or you can raise your hand. I will ask you, or you can unmute yourself and tell me. 1 to n consecutive natural numbers, उसका average क्या होगा? So its average is 1 plus 2 plus up to n divided by n. Right, 1 to n consecutive natural numbers का sum क्या होता है students? What is their sum? n into n plus 1 by 2. Okay, yes Karthika, yes Neha, you both are right. So sorry, my mistake. n into n plus 1 by 2, ये उसका sum होता है. And for average, here it is already n, ये n cancel हो जाएगा. So it is 1 plus n by 2. Yes, Roshan. So right, average of first n natural numbers is 1 plus n by 2. That is first number plus last number by 2. So from this you can expect any questions by 1 to 10 number का average, right? 1 to 100 consecutive numbers का average. So it is directly first number, first last number plus last number divided by n. Okay, or divide by 2. Sorry, not n. So first number plus last number divide by 2. तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा डेफिनेटली, बट इसकी हेल्प करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप हो जाएंगे. राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी हेल्प आ जाएगी. चलो, now let us go to 1 to n consecutive odd natural numbers. So 1 to n consecutive odd numbers. 1 to n consecutive odd numbers. So for 1 to n consecutive odd numbers, right, what will be your average? Yeah, sum के लिए आपको करना पड़ेगा 1 plus 3 plus 5 up to जो लास्ट नंबर होगा वो डेफिनेटली आपका एक ऑड नंबर होगा. राइट, डिवाइड बाय n. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स का सम क्या होगा. ओ नेहा, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड. ओके, सो 1 to n ऑड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर. राइट, अगर टोटल नंबर्स आपके n है तो. ओके, एंड n स्क्वायर डिवाइड बाय n करोगे, सो विल गेट एवरेज इक्वल टू n. यही सेम क्वेश्चन जब हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तब भी काम आएगा. राइट, तो यहाँ पे दोनों चीजें आप पैरेलली याद रखते जाओ. सो सम ऑफ n ऑड नंबर्स, राइट, इट विल बी योर n स्क्वायर. ओके, अब ये सम कैसे निकाल सकते हो? बाय विद द हेल्प ऑफ एपी के सम की फॉर्मूला के से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. योर फर्स्ट टर्म विल बी 1 ओवर हियर. राइट, अब आपको nth टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी. ओके,
तो n टर्म आप यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ओके, a इज योर 1 प्लस n माइनस वन, व्हाट इज योर d, 3 माइनस 1 दैट इज 2, सो इट इज 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1. तो n टर्म आपकी 2n माइनस 1 होगी, फिर उसके Sn की फॉर्मूला में आप रख के कर सकते हो n by 2 a plus l और n by 2 2a plus n minus 1 into d. Is it clear? Please give me some response. तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, sum of n odd numbers is n square and its average is n. Okay, so first n odd numbers. चलो even number के बारे में देखें. Okay, even के बारे में एक बार पहले देख लेते हैं, फिर सारी चीजें साथ में कैसे याद रखनी है वो भी आपको बताऊंगा. Okay, so sum of, अब यहाँ पे n इवन नंबर्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं. सो सम ऑफ n इवन नंबर्स, पहले सम फिर वहां से मैं एवरेज दिखाऊंगा सारी चीजें. तो यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो, इवन नंबर्स आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट, और यू कैन एक्सक्लूड 0. सो इट इज इंक्लूडिंग 0 और एक्सक्लूडिंग 0. सो इफ यू इंक्लूड 0 तो आपके n इवन नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, 0 2 4, और अगर 0 को एक्सक्लूड करोगे तो 2 से स्टार्ट होंगे, 2 4, लाइक दैट. ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपका nth टर्म होगा 2n, राइट, और यहाँ पे आपका n टर्म होगा एक्चुअली 2n माइनस 2, समझना, ठीक है. चल, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप सम करोगे, राइट, तो ये सम आपको मिलेगा n स्क्वायर प्लस n, कौन सी मेथड से, AP, राइट, विद द हेल्प ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैंने आपको ऊपर बताया ऑड के लिए, वही सेम मेथड से. तो s आपको यहाँ पे मिलेगा n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे s मिलेगा n स्क्वायर माइनस n. ओके, घर से ट्राई करना, नहीं आया तो पूछना. और अगर सम आपका n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर माइनस n है, तो एवरेज आपका क्या होगा, n से डिवाइड कर दो, n माइनस 1, और यहाँ पे एवरेज होगा आपका n प्लस 1. इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, तो अब यहाँ से याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट. अब बीच में इधर ऑड नंबर घुसा लो, राइट. सम ऑफ ऑड नंबर्स, सो सम ऑफ ऑड नंबर्स, राइट, ऑड नेचुरल नंबर्स, वो आपका हो जाएगा n स्क्वायर, तो उसकी एवरेज क्या हो जाएगी, n. तो है ना आसान, राइट. वी कैन रिमेम्बर दिस इन दिस सीक्वेंस, कि अगर आपके पास ऑड नंबर्स हैं तो उनका सम होगा n स्क्वायर n. इवन नंबर्स हैं, आप 0 को इंक्लूड कर रहे हो तो n स्क्वायर माइनस n, 0 को एक्सक्लूड कर रहे हो तो n स्क्वायर प्लस n. तो ये भी आपको कंसेक्यूटिव मिला, n माइनस 1 n, n प्लस 1. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स. क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, फिर इसके बेस से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, और दो चीजें सिखानी है, राइट. टाइप इन चैट बॉक्स प्लीज. ओके, isn't it interesting? Okay, so what about others? Abhishek, is it clear? Okay, Neha, Praveen, Roshan, Suraj, Karthikeya. Okay, so now see over here. So from here, now the next property is if you are taking any consecutive integers, right. अभी वाले जितने भी हमने देखे consecutive integers वो सब 1 से स्टार्ट हो रहे थे, except this, ये सब आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग. अब ये कोई भी इंटीजर्स में ले रहा हूँ जो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, राइट. इट कैन बिगिन फ्रॉम एनीवेयर एंड इट कैन एंड टू एनीवेयर. सो इफ आई एम टेकिंग एनी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, एनी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, कहीं भी एंड हो सकते हैं, बट देयर इज ओनली वन कंडीशन विच इज कॉमन इन देम, इट इज कंसेक्यूटिव, कि वो वाले नंबर्स आपके कंसेक्यूटिव होंगे. सो हियर आल्सो यू आर हैविंग टू नंबर ऑफ ऑप्शंस, कि आपके टोटल नंबर्स जितने भी आप ले रहे हैं कंसेक्यूटिव, आइदर दे विल बी ऑड और इवन, राइट. आइदर वो ऑड नंबर्स होंगे या इवन नंबर्स होंगे. सो सपोज लेट अस टेक दैट टोटल नंबर्स आर ऑड एंड हियर टोटल नंबर्स आर इवन. सो यहाँ पे टोटल नंबर्स हैं, समझना, ये जो था यहाँ पे ऑड नंबर्स का सम कर रहे थे और इवन नंबर्स का सम कर रहे थे. यहाँ पे आप जितने ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, राइट, सो वो सारे नंबर्स आपके ऑड है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आई कैन से, so number of observations या number of all terms are odd over here, and number of all observations are even over here. So number of observations are odd over here and number of observations are even over here. So if number of observations are odd, okay, if number of observations are odd, तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल कोई भी हम ले सकते हैं. सपोज मैं 50 से शुरू कर रहा हूँ,
आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. चलो 50, 51, 52, 53, 54. तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5. इट इज ऑड. तो यहाँ पे आप एवरेज कैसे फाइंड करोगे? टेल मी क्विकली. सम और डिफरेंस. सम क्या सम करके डिवाइड बाय एन करने की जरूरत है या डायरेक्टली कुछ कर सकते हैं? राइट, डायरेक्टली. योर एवरेज विल बी 52. राइट, एवरेज विल बी मीडियन ओनली हियर. इज इट क्लियर? मीन, मीडियन और मोड वो सब आप पढ़ चुके हो. तो यहाँ पे एवरेज आपका मीडियन ही हो जाएगा, 52 हो जाएगा. राइट. चलो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सपोज आपके इवन है. सो उसी का यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें एक और नंबर ऐड कर देते हैं. तो 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55. तो अब आपके नंबर्स कितने हो जाएंगे? 6. 1 2 3 4 5 6. चलो तो अब एवरेज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. अब एवरेज क्या हो जाएगी? इन दोनों का एवरेज 52 प्लस 53/2. वेरी गुड. इन दोनों के बीच का मिडिल नंबर. राइट, दैट इज 52.5. ओके, दैट इज 52 प्लस 53/2. वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. राइट. तो अगर आपके पास इवन ऑड नंबर्स हैं तो डायरेक्टली आप बीच का नंबर लिख दोगे. इवन नंबर्स है तो बीच के दो नंबर का एवरेज ले लोगे. राइट. सो दिस इज फॉर इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्जर्वेशंस आर ऑड और इवन. तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं. ओके, नाउ let us go for sixth observation, that is combined or grouped or weighted average. ओके, तो अगर आपके पास n1 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन है x1, n2 ऑब्जर्वेशन है जिनका एवरेज है x2, n3 ऑब्जर्वेशन है जिनका एवरेज है x3. लाइकवाइज आपके पास ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं. तो अगर आपको उनका वेटेड मीन निकालना है और वेटेड एवरेज निकालना है तो यू ऑल नो n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3, क्योंकि इधर आपको सारे सम्स मिलते जाएंगे. n1 x1 n2 x2 n3 x3 करोगे तो सारे सम मिलेंगे. डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3. इस तरीके से सारे नंबर्स मिलेंगे. इज इट क्लियर नाउ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सो n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 चलता जाएगा डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3. सो अब क्वेश्चन शुरू करें उसके बेस पे. ओके, सो क्वेश्चन 1 और 2 डायरेक्टली आप ट्राई करना. लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. So in question number 3, they are telling that out of 9 persons, 8 persons spent rupees 30 each for their meals. Okay, the ninth one spent, जो आपका ninth one है, he is spending or he or she is spending rupees 10 or 20 more than the average expenditure of 9. He is spending rupees 20 more than average of 9. सभी 9 का जो एवरेज है उससे वो 20 ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है. द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम वाज. सो टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम वाज. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन. राइट, एक बार क्वेश्चन एक बार वापस देख लो. So there are total 9 persons. From these 9 persons, 8 are spending rupees 30 each, and ninth one is spending 20 more than average of all of the 9. So we have to find total money expended by all of them, right? Total money spent by all of them. So see over here students, there are total 9 persons. अब होता है ना ग्रुप में एक तो अलग होता ही है, राइट? जो सब बोलेंगे हम ईस्ट में जाएंगे तो वो बोलेगा वेस्ट में जाऊंगा मैं अकेला. राइट, आप सब कर रहे हो कॉलेज, आपको पता ही है. सब बोलेंगे चलो आज मूवी देखने जाएंगे बंक करके, वो बोलेगा नहीं मैं तो पढ़ूंगा. उसी दिन वो सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाते हैं. राइट, जस्ट जोक पार्ट हंसाने के लिए कर रहा हूँ. तो उस तरीके से ऑफलाइन क्लास होता है तो पता चल जाता है कि जोक पे सब हंस रहे हैं कि नहीं. ऑनलाइन में पता नहीं चल रहा है फिलहाल. सो अगर यहाँ पे आपके पास मैं ग्रुप को अलग कर दूं तो 8 में से एक बंदा हमारे पास अलग है. ये 8 पीपल है, वो स्पेंड कर रहे हैं रुपीज 30 ईच. पर ये जो अपना एक बंदा है इज वन पर्सन. यस महिमा, योर आंसर इज राइट. हाँ, थैंक यू प्रवीण फॉर दिस ऑप्शन. नेहा ने आंसर दिया. नहीं नेहा, दैट आंसर इज नॉट राइट. यू कैन चेक वंस अगेन. तो एक पर्सन है जो अलग स्पेंड कर रहा है. वो कितना स्पेंड कर रहा है? मान लो 9 पीपल का एवरेज है 9 ए है,
तो ए में ए से +20 ज्यादा वो स्पेंड कर रहा है, राइट। सो ही इज स्पेंडिंग ए +20 रुपीज। सो अगर मुझे यहाँ पे टोटल एवरेज निकालनी है, समझना दिस इज योर केस ऑफ ग्रुप एवरेज, राइट। ग्रुप हमने अलग अलग कर दिया, N1 X1 N2 X2, दिस इज टोटल N। एंड यस अभिषेक, योर आंसर इज राइट। सो अवर ए विल बी, राइट, जो हमने अभी ऊपर देखा, इट इज N1 X1, तो पहला ग्रुप है ये N1 X1 8 into 30, ओके, प्लस N2 X2 1 into A plus 20 divide by N1 plus N2, that is 8 plus 1, that is 9, isn't it? तो अब 9 उधर चला जाएगा। yes Chandrasekhar, your answer is also right. So therefore 9A is equal to 8 3s are 24 240 plus A plus 20, तो 9A minus A, that will be 8A equal to 240 plus 20, that is 260, और यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो A आपको मिलेगा 32.5, ओके। गेट में ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है स्टूडेंट्स, वो ऑनलाइन कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि जो आप गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको एप्स मिल जाएंगी, ठीक है, और वो अभी से उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करो। अभी से घर के छोटे मोटे कैलकुलेशन जो भी आप कर रहे हो वो वर्चुअल कैलकुलेटर में करो, क्योंकि जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हो और ये वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करते हो, बोथ आर डिफरेंट, ओके, बोथ आर। एक सिर्फ छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, ओके। इन साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपको 9 into 10⁹ फाइंड करना है, या सिर्फ अगर 10⁹ फाइंड करना है, तो आप पहले 10⁻x को प्रेस करोगे, उसके बाद 9 प्रेस करोगे। बट इन वर्चुअल कैलकुलेटर आपको पहले 9 प्रेस करना पड़ेगा, फिर 10⁻x प्रेस करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ओके, बिकॉज यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभी से आपको जितने भी कैलकुलेशन करने हैं सब इसी पे करो, ये वर्चुअल कैलकुलेटर पे। अब ए आपका 32.5 हो गया है, आपको सम फाइंड करना है, तो टोटल सम क्या होगा स्टूडेंट्स? एवरेज इक्वल टू सम बाय एन, राइट। सो सम इक्वल टू एवरेज इनटू एन, एवरेज इज 32.5 and your total number of persons are 9, so it is equal to 292.5. is it clear? तो नेहा आपको पता चला गलती कहाँ पे हुई थी, राइट। एंड दिस इज ओरिजिनल मैथ्स जो अभी आपने ये क्वेश्चन में किया स्टूडेंट्स। क्या किया आपने खुद ट्राई किया, फिर जो मैंने आपको कराया उससे आपने आपकी गलतियां देखी या पूछा, राइट। यस, सो दिस इज ओरिजिनल मैथ्स, राइट। इसी तरीके से आपको करना है, तो इस तरीके से ट्राई करो और जो भी डाउट है पूछो, ओके। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, वैसे टाइम हो गया बट एक क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं उसके बाद। सो क्वेश्चन नंबर 7। So if you see this question number 7, आपको बोला गया the average temperature of the town in first 4 days of a month was 58 degree। तो एक भाई गांव में हम एक क्या टाउन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट 4 मंथ्स में, राइट, फर्स्ट 4 मंथ्स एवरेज टेम्परेचर इज 58 डिग्री नाउ, और फर्स्ट 4 days, okay, sorry, wait for a minute, हाँ, the average temperature of the town in the first 4 days of a month was 58 degree, then wait for 1 minute, कहाँ गया? The average for the second, third, fourth and fifth days। अब second, third, fourth and fifth days, अगर इसका आप एवरेज निकालोगे, it was 60 degrees, right, वो आपका 60 डिग्री है। If the temperature of the first and fifth day were in the ratio 7:8, फर्स्ट और फिफ्थ डे का जो आपका टेम्परेचर था उसका रेशियो आपको दिया गया 7:8, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फिफ्थ डे, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फिफ्थ डे, तो फिफ्थ डे पे आपका टेम्परेचर क्या है वो पूछा गया है, ओके। चलो कैसे करेंगे, और यू कैन ट्राई बाय योर ऑन हियर, राइट। तब तक मैं यहाँ पे करता हूँ एंड विल वेरीफाई योर आंसर। सो सी ओवर हियर, फर्स्ट 4 का एवरेज आपको दिया गया है 58। सो सपोज पहले 4 डेज का आपका टेम्परेचर में ABCD ले लूँ, A plus B plus C plus D डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 58, तो इट इज इक्वल टू 58 into 4। फिर आपको दिया गया है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, C D E F ले लो, सो C plus D plus E plus F, ओके। और आपको फर्स्ट और फिफ्थ का रेशियो दैट इज A:F दिया गया है 7:8, ओके, एंड इट विल बी इक्वल टू 60 into 4, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दो, किसी भी एक को अगर आप माइनस करो यहाँ पे तो समझो, तो अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये आपका यहाँ पे कुछ गलती हुई क्या, हाँ, बी से शुरू होना चाहिए ना, BCDE होना चाहिए, माई मिस्टेक, वेट, BCDE, ओके। तो ये आपका A:E आएगा, A:E,
Okay, so this will be your B plus C plus D plus C. अब यहाँ से माइनस करोगे किसी में से भी किसी को, अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हो बिकॉज सेकंड आपका बड़ा है, सो यहाँ आपका B माइनस बी जीरो, C माइनस सी जीरो, D माइनस डी जीरो, यहाँ पे आपका बचेगा E माइनस ए इज इक्वल टू 4 कॉमन 60 माइनस 58 दैट इज इक्वल टू 2. सो 60 माइनस 58 इज 2, 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8. E माइनस से आपका 8 है, अभी आपका रेशियो प्रोपोर्शन वाला हो जाएगा, तो A आपका हो जाएगा 7 पार्ट, E आपका हो जाएगा 8 पार्ट, तो 8 पार्ट माइनस 7 पार्ट, 1 part is equal to 8. If 1 part is equal to 8, you have to find E. E is 8 part. 8 part means 8 into 8, so 64 degree. Is it clear everyone? क्या चीज क्लियर हुई? राइट, अगर फर्स्ट डे का पूछा होता तो 7 into 8 आ जाता, दोनों का डिफरेंस पूछा होता तो वो यही आ जाता 8 डिग्री डायरेक्टली. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. इज इट क्लियर? ओके, तो okay, so we are keeping till here only today, right? आज हम यहाँ तक रख रहे हैं. Okay,